everyone, and welcome to today's session of NutriLift 360. We've all heard that breakfast is the most important meal of the day. But why? How does it impact our gut, health, and weight? What is the relation between the breakfast and the cravings that we have throughout the day? Does morning nutrition also have an impact on our mental health? To get the answers to all of these and so much more, let us begin this session. It is my honor and privilege to invite Farooq Dalapur to start. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a flag bearer on this journey with a mission: Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Friday session. I just hope you had an early dinner and done some exercise. Now, if you have, some days you'll probably be in a scenario where you just can't do the exercise. You don't have the time, there's a challenge, there is, a health challenge, there is a relationship challenge, there's some form of a challenge. Now, and that is a time when you need to open the website and do some small exercises out of that, which are easy to do, which doesn't take a lot of time, maybe just 5 minutes, 10 minutes. And it will at least, it should not be that every day you are doing that. But on some days when you have got some form of a challenge, and if you do that, it will at least manage to keep the continuity, and the thought process that I got to exercise after dinner. Today, this topic about morning nutrition is something which is very close to my heart. I've always believed that morning nutrition is one of the most important things. And I often said that have your breakfast like a king, have your lunch like a prince, and have your dinner like a pauper. So when you prepare your breakfast, ensure that you have at least 50% of the protein requirement for the day in that breakfast. For example, if you're 60 kilos in weight, are you consuming 30 kilos of protein during your breakfast? If not, then do something, add some protein. It is a good substitute to have 2 scoops of protein powder in the morning, which will cater for at least more than half that requirement, 18 grams or thereabouts, you'll get some protein. And then if you're having some, eggs and some curd, you probably make up the requirement. But check whether are you making the requirement or not. Because if you are not, then your whole day is going to be, you're going to be behind the game and you're going to not feel very energetic. One of the things that I've always noticed that how do you really check whether is your breakfast good? Is your lunch all right? I mean, are you really eating healthy? And the acid test over here is very simple. Are you feeling energetic? Are you feeling more energetic than yesterday? Are you feeling less energetic than yesterday? Or at least you're feeling the same energy as yesterday. Then you know whether you're making progress on your health or you're not making it. Have you ever seen, a really sick patient, a cancer patient, having a lot of energy, bubbling around, excited, jumping around, cracking jokes? Probably not. Because when you have a lot of energy and your body is healthy, you're automatically void of, health challenges. Today, you're going to be listening from Manoj. Now, Manoj is somebody who's made a huge transformation change in his own body, and he has lots of stories to share because of his personal changes that he has made. He's put in the effort, he's learned about these things, and have started implementing them and seeing the real benefit to his own health. He's very excited to narrate and share his story. So listen to Manoj very carefully. Over to you, Manoj. Thank you very much, Farooq. And as I always say, it is just because of you, or it is not that in the, only at the initial stage. Abhi bhi, whenever we need, you are there to help us. And
वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर हेल्थ, और जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसके भी इम्प्रूवमेंट्स, जहाँ भी आपसे सजेशन चाहिए होता है हम लेते हैं, और बिल्कुल आप देते हो जनरसली. सो वेलकम एवरीवन. तो अभी हम करते हैं शेयर स्क्रीन. Is the screen visible and my voice audible? Yes, ma'am. थैंक यू वेरी मच. तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्निंग न्यूट्रिशन, और ये सवाल ही से शुरू होता है, व्हाई मॉर्निंग न्यूट्रिशन. आप लोग ये सोचते हो कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन ये है क्या, नहीं भला. मॉर्निंग सुना है, न्यूट्रिशन सुना है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्या होता है और क्यों है जरूरी. ठीक है. तो न्यूट्रिशन मॉर्निंग आपको पता है सुबह सुबह, और न्यूट्रिशन आपको भी पता है कि हमारे शरीर को जो चाहिए होता है अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए और अच्छी तरह से काम करने के लिए, वो है न्यूट्रिशन. अब बात आ जाती है मॉर्निंग न्यूट्रिशन. तो सुबह सुबह का न्यूट्रिशन जो आप खाते हो, बेसिकली अगर आप उसको दूसरे शब्दों में डाल दें तो वो है, सिंपल शब्द में डाल दें तो ब्रेकफास्ट या नाश्ता जिसको आप कहते हैं. हम उसके बारे में बात करेंगे आज कि क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है. और उसके पहले कुछ चीज़ें समझ लें. न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मतलब होता क्या है ब्रेकफास्ट. अगर ब्रेकफास्ट को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक और फास्ट है. सो यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट. रात को आपने खाना खाया होगा, आइडियली आपने 7:30-8 बजे लेट से लेट खा लेना चाहिए. लेकिन अगर 9 बजे भी खाया है, अज्यूम करते हैं, और सुबह आप वापस 8 या 9 बजे खा रहे हो, तो 11 से 12 घंटे का एक फास्टिंग है आपके अंदर, है ना, जिसको आप ब्रेक कर रहे हो, मतलब कुछ खा रहे हो सबसे पहले. और ये आपका सुबह का खाना है. और सुबह मतलब कब, है ना. सुबह तो किसी के लिए 5 बजे चालू होती है, किसी के लिए 4 बजे चालू होती है, किसी के लिए 11 बजे चालू होती है. बट बेसिकली आप अगर पूरे हमारे सिस्टम को फॉलो करते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कितने बजे सोना है और कितने बजे वो हिसाब से उठना है. और बेसिकली मोटा मोटा अगर आप कहें तो सुबह का पहला मील आपके उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए. और अभी फारूक जी ने कहा कि आपको अपना ब्रेकफास्ट राजा के जैसे करना चाहिए, और आपको आपका खाना एक प्रिंस या राजकुमार के जैसा करना चाहिए, और डिनर आपको एक गरीब के जैसा करना चाहिए. जैसा गरीब खाना खाता है ना, थोड़ा थोड़ा या बहुत कम, वैसा करना चाहिए. क्यों, सवाल ये आता है कि क्यों. इसलिए अगर मैं एकदम साधारण भाषा में समझाऊं आपको, आप अपनी दिनचर्या देखिए. आप सबसे ज़्यादा काम कब करते हो? ब्रेकफास्ट के बाद, खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद, या रात के खाने के बाद? अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुबह के खाने के बाद आपने ज़्यादा काम करना है, 12-1 बजे तक, है ना. उसके बाद फिर आप थोड़ा रिलैक्स मोड में काम करते हो, और खाना खाने के बाद रात का तो फिर आप बिल्कुल काम करते ही नहीं हो, अदर अनलेस अगर आप कोई नाइट शिफ्ट में है तो अगर आपको ज़्यादा काम ब्रेकफास्ट के बाद करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपका खाना न्यूट्रिशियस होना ही चाहिए, है कि नहीं. ये तो हो गया एक आम भाषा में समझाने वाली बात. लेकिन इसके पीछे का और साइंस क्या है, इसीलिए हमने, अगर आप ध्यान दें, इस स्लाइड में लिखा है डीप डाइव. थोड़ा अंदर तक घुसेंगे आज कि और क्या साइंस है इसके पीछे कि हमें सुबह का नाश्ता या सुबह का ब्रेकफास्ट सुबह का ही होता है, तो कि ब्रेकफास्ट हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके ऊपर आप जानेंगे. ठीक है. तो अगर आप पहले सिचुएशन देख लें आज दुनिया में क्या है. 15 से 30% लोग अलग अलग रीजन में, है ना, सुबह का न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, मतलब खाते ही नहीं है. कारण कुछ भी हो सकता है. कारण हो सकता है कि वो अकेले रहते हैं, ज़्यादा सभी काम खुद करना पड़ता है, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, बाहर खा लेंगे ये सोच के. या फिर जॉइंट फैमिली में रहते होंगे तो कहाँ किसी को टेंशन दें, चलो जो निकल जाओ बाहर देख लेंगे, ये भी हो सकता है.
न्यूक्लियर फैमिली है, आप और आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं और दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, हो सकता है सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता हो, आपने ध्यान नहीं दिया, बाहर खा लेंगे। लेकिन इससे होता क्या है, इस लाइफस्टाइल से और इस आलसी भरी जिंदगी की वजह से आप अपना वजन बढ़ा लेते हैं। हालांकि आपको लगता है कि आप ब्रेकफास्ट को अगर स्किप करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो आपका वजन घटेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, हर 4 में से एक इंसान मेट्रो में ब्रेकफास्ट करता ही नहीं है, छोड़ देते हैं। और 60 से 80% उसमें से भी लोग ये बोलते हैं कि वो उतना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं जितना उनको खाना चाहिए। ओके, और ये दोनों में है, मेल में भी है, फीमेल में भी है, लेकिन फीमेल ज़्यादा है जो ब्रेकफास्ट के प्रति एकदम नरम रुख अपना के रखते हैं। मतलब ये कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने हस्बैंड को खिला देंगे, उसको फोर्स करने खा जाओ, बच्चों को खिला देंगे एक बार, लेकिन खुद नहीं ध्यान देंगे अपने ऊपर। ये सिचुएशन है। और अगर हम घर पे ब्रेकफास्ट करके नहीं चलते हैं तो फिर हम करते क्या, अगर बाहर जाएंगे तो हम ऐसे चीज़ें खा लेते हैं जिसके अंदर ज़्यादा शुगर होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, और हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, है ना। ये इसके वजह से होता है क्योंकि आपने सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया। इसलिए अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया, न्यूट्रिशियस कर लिया ना, न्यूट्रिशियस मतलब क्या है, थोड़ा 1-2 सेंटेंस में बता देता हूँ। न्यूट्रिशियस मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए सुबह सुबह, हम उतना खा लें। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। आप यहाँ पे आते रहोगे, आपको हर बार हर सेशन में मिलता जाएगा। तो आज की डेट में हम सिर्फ ये ध्यान देंगे कि सुबह क्यों ज़रूरी है खाना, है ना। सुबह खाने का ये कुछ कारण है जो आपको करना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए। एक तो आपका ऐसा होता है कि रात को, आपको पता ही है कि रात में हमारी बॉडी रिपेयर मोड पे रहती है। उस वक्त आपका मेटाबॉलिक रेट अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्मल से 15% कम होता है, और सुबह सुबह आपका मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। ओके, तो मेटाबॉलिक मतलब क्या, मेटाबॉलिक मतलब ये कि आप खाना पचा के उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, दैट इज़ द मेटाबॉलिक। तो अभी आप सोचिए, अगर सुबह सुबह आपका अगर खाना पचाने का सिस्टम और खाना पचाने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तो आपको सुबह सुबह खाना चाहिए। रात के टाइम पे क्योंकि आपका बॉडी रिपेयर मोड में रहता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है क्योंकि वो यूज़ हो गए हैं। खास करके प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, ये भी अगर आपको किसी ऐसे किसी एपिसोड में आप उसके बारे में वो पूरा एक सेशन सुनोगे आप, है ना। तो रात को आपने बॉडी ने आपके प्रोटीन को यूज़ कर लिया, तो सुबह उसका नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो सुबह सुबह जैसे ही आप दोगे, मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपके फ़ायदे की चीज़, शरीर के फ़ायदे की चीज़। सुबह सुबह इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, ग्लूकोज टॉलरेंस अच्छा रहता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप खाना खाओगे सुबह, उसके शुगर को, उसके ग्लूकोज को बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके वजह से आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा नहीं रहेगा, आप डायबिटिक बनने के नज़दीक नहीं रहोगे, है ना। तो इसलिए सुबह सुबह खाना ज़्यादा अच्छा है। इसका उल्टा है रात को। हाँ, अगर आपने रात को ज़्यादा खाया तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत लो है, आप खाना जो भी खाओगे तो उसका शुगर ब्लड में घूमते रहेगा और उसके फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सुबह सुबह आपके बॉडी के बैक्टीरिया, गट के बैक्टीरिया में ऑल्ट्रेशन हुए रहते हैं, है ना। अब ये गट बैक्टीरिया क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। मोटा मोटा ये समझ जाइए कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बुरे। तो सुबह सुबह आपके अच्छे बैक्टीरिया को खाने की तलब रहती है, तो उनको भी खाना चाहिए होता है, ताकि वो बुरे बैक्टीरिया को भी मारे और आपके अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके शरीर में अच्छी हो। इन कारणों को देख के आपको लग जाना चाहिए अभी तक तो यार सुबह का खाना क्यों ज़रूरी है। और अब ये सवाल कि सुबह खाना ज़्यादा क्यों खाना चाहिए, है ना, लाइक अ किंग, क्योंकि ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट मील है, ये कहा जाता है। अगर आपने सुबह अच्छे से खाना खा लिया न्यूट्रिशियस तरीके से, है, न्यूट्रिशियस तरीके का मतलब ये कि जितना आपको प्रोटीन खाना है उतना प्रोटीन खा लिया, जितना कार्ब्स खाना है उतना कार्ब्स खा लिया, जितना फैट खाना है फैट खा लिया, जितने विटामिन मिनरल्स आपको चाहिए आपने बॉडी को दे दिए। इसके वजह से क्या होगा,
क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अच्छा है आपका, सुबह अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जिससे आपका पूरा दिन का साइकिल खाने का ठीक ठाक रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर आपने सुबह बराबर से खाना नहीं खाया, सिर्फ बिस्किट चाय खा लिया या टोस्ट चाय खा लिया या 2 स्लाइस ब्रेड खा लिया, आपको 10-11 बजे के आसपास फिर भूख लगेगी। फिर आप वो टाइम पे क्या खाओगे? आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। सुबह ही आपने अगर ब्रेड खा लिया तो 10-11 बजे क्या ही खा लोगे आप, है ना? फिर वही हो जाएगा समोसा, सेंग, वड़ा पाव, ढोकला, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें न्यूट्रिशियस नहीं है। ओके, कुछ चीज़ें तो इसमें से हेल्दियर है ही नहीं, लेकिन न्यूट्रिशियस भी नहीं है, और इसके वजह से फिर आप दिन भर आपका यही चलता रहेगा, है ना? एक बार आपने बुरा साइकिल पकड़ लिया, वही चलता रहेगा दिन भर में। क्योंकि आपने ओवरनाइट की फास्टिंग को ब्रेक करना है, इसलिए सुबह आपको ज़्यादा खाना है, क्योंकि रात सुबह आपको भूख लगी होगी, और सुबह भूख लगना ये अच्छी निशानी है। अच्छी निशानी का मतलब ये कि आपने जो भी आपको रात को खाना खाया था वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो चुका है। नाउ यू आर रेडी फॉर द फ्रेश वन। ओके, ये आपके सुबह सुबह एनर्जी लेवल को फ्यूल करता है और आपकी कॉन्जिटिव पावर को बढ़ाता है। इसका मतलब ये कि जैसे आपने खाना खाया तो ऑब्वियसली खाने से हमको एनर्जी मिलती है, और सुबह सुबह आपको ऐसे ही काम ज़्यादा करना है, जैसे कि हमने बात की कि ब्रेकफास्ट के बाद ज़्यादा हम काम करते हैं लंच से पहले। आपका दिमाग भी तेज चलना चाहिए। देखिए, आपका दिमाग भले ही आपके शरीर का 2% होगा, लेकिन एनर्जी वो आपके टोटल कंजम्पशन का 20% यूज़ करता है। तो अगर आपने अच्छी एनर्जी नहीं दी तो आपका ब्रेन भी अच्छे से नहीं चलेगा, और अच्छी एनर्जी दे दी उसको, शरीर को, तो ऑब्वियसली ब्रेन अच्छे से यूज़ करेगा उसको। और क्योंकि रात को आपका बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अंदर डेफिशिट हो चुके हैं, तो आपको बॉडी को देना ज़रूरी है। इसलिए भी क्योंकि सुबह सुबह खाली हो चुका है सब कुछ, शरीर में बचा नहीं है, ना अच्छा प्रोटीन बचा है, ना अच्छा आपका न्यूट्रिएंट्स बचे हैं कुछ। तो वो आपको जितना ज़्यादा आप दे दोगे तो उतना जल्दी वो काम करना चालू करेगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई है। अगर आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया तो उसके 3 इफेक्ट होते हैं। 3 इफेक्ट मतलब 3 तरीके से इफेक्ट करता है आपके बॉडी को। एक है फिजिकल इफेक्ट, जो आपको दिखता है कि आपके फिजिकल चेंजेस क्या क्या आए हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में जो आपके अंदर घट रहा है, आपको शायद पता चलेगा या नहीं चलेगा कि अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके। एक साइकोलॉजिकल, बेसिकली आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ये अभी हम एक एक के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिजिकल इम्पैक्ट क्या है कि अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया तो आप देखोगे कि आप खुद ही एनर्जी से अच्छे नहीं हो, लो एनर्जी में हो, लो एंड्योरेंस है, मतलब कोई अगर आप काम कर रहे हो तो उसको काफ़ी देर तक नहीं कर पाओगे, थक जाओगे जल्दी। ओके, और क्योंकि जब हम खाना कम खाते हैं तो ये मत सोचिए कि आप अपना वेट लॉस कर लोगे। इनफैक्ट ऐसी स्टडी भी हैं कई सारी जिसमें कहा जाता है कि ये फैट डिपॉजिशन को इंक्रीज करता है। ये क्यों? आप ऐसा एग्जांपल लीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि खाना कम खाने से भी फैट बढ़ता है। होता यह है कि हमारा बॉडी हमसे काफ़ी स्मार्ट है। ओके, आप इस तरह से इसको देखिए कि अगर आपके घर पे एक जो इनकम आ रही है सपोज, वो अनइवन है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? जिस दिन आपके पास कम आएगा उसमें से भी आप कुछ बचाने की कोशिश करोगे कि चलो इसको बचा के रखता है, कभी काम आएगा। जिस दिन ज़्यादा आएगा उस दिन भी आप बचाने की कोशिश करोगे। बॉडी जो है एक सेविंग मोड में रहता है, आप भी एक सेविंग मोड में हो जब आपका अनइवन इनकम होती है। तो सेविंग मोड पे आप क्या करते हो? पैसा बचाते हो। यहाँ पर ही क्या करता है अपना बॉडी, हमारी बॉडी दिख करती है कि वो एनर्जी सेव करने के लिए एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में स्टोर करने लग जाती है। तो आपको तो लगेगा कि आपने कम खाना खाया फिर क्यों फैट बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बॉडी बोल रही है कि इस इंसान का भरोसा नहीं है कि किस दिन मुझे भूख से मार देगा, तो इसलिए चलो हम एनर्जी को बचा के रखते हैं। तो क्या करता है, आपने भले ही कम खाया हो उसमें से भी कुछ एनर्जी बचा के फैट के रूप में कन्वर्ट करके आपके बॉडी में रख देगा। जिससे क्या होगा, फैट बढ़ेगा और ऑब्वियसली आपके बॉडी वेट भी बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर आप देखोगे, अगर आपने सुबह सुबह न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट कर लिया तो आपको क्या फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी एनर्जी हाई रहेगी। एनर्जी हाई रहेगी तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपको फैट डिपॉजिट नहीं होने देगा क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली अच्छे से खा रहे हो, उसे पता है बॉडी को।
ये जितना मुझे चाहिए होता है ये इंसान मुझे उतना दे देता है न्यूट्रिशन, तो उसे उसकी चिंता नहीं रहती। ओके, तो वो फैट डिपॉजिट नहीं करता। जब फैट डिपॉजिट नहीं करेगा तो वेट भी नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट वेट फिर आपका आस्ते आस्ते घटने लगता है। ओके, और अगर आपने न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं किया तो फिर आप मोटे भी होते जाते हैं। और कैसे होते हैं? क्योंकि आपने अगर खाना बराबर से नाश्ता बराबर से नहीं किया तो थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगेगी, तो आप क्या करोगे? आपका ब्रेन, आपका माइंड इस तरफ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा शुगरी फूड हो, जहाँ पर ज़्यादा हाई फैट वाला फूड हो, उस तरफ जाएगा आपका। मैं आपको मेरा आज का पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। आज मैं किसी काम से बाहर गया था, मैं दोपहर का लंच मैंने आज शाम को 4 बजे किया। क्यों? क्योंकि मैं किसी काम से बाहर था और मुझे लंच करने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। लेकिन जब मैं 2 से 4 के बीच में ट्रैवल में था घर आने के लिए, उस वक्त मेरा ध्यान कहाँ जा रहा था मालूम है? फास्ट फूड पे, कि कहीं कुछ है क्या देखता हूँ, कहीं कुछ है क्या देखता हूँ। मैं काफ़ी कंट्रोल करते 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 घर आया हूँ। ये मैंने आज ये चीज़ को तो खुद ही महसूस की है। वो ये नहीं देख रहा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके अच्छे से खाना खा लूँ या अच्छा खाना खा लूँ, नहीं, दिमाग मेरा सिर्फ उसी तरफ जा रहा था। कहीं कुछ फास्ट फूड मिल जाए, तो कहीं भजिया दिख रहे थे, कहीं वड़ा पाव दिख रहा था, कहीं समोसे दिख रहे थे, बट नहीं, मैं उसे कंट्रोल करते 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 घर आया हूँ। और फिर 4 बजे, भले ही 4 बजे खाया, लेकिन 4 बजे खा लिया। और दैट वॉज माई लास्ट मील ऑफ द डे, क्योंकि उसको मैंने अच्छे से खा लिया। फिर रात की मैंने गुंजाइश ही खत्म कर दी, क्योंकि उसके बाद फिर भूख लगनी थी नहीं। तो फिजिकल बेनिफिट आपको क्या क्या मिलता है? जो दिखते हैं, आपको खुद दिखेगा कि आप एनर्जी लेवल में अच्छे हो, आपको थकान नहीं हो रही है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, और ये आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेल्प करता है। आपके बॉडी ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए बॉडी को हेल्प करता है, स्पेशली अगर आप बच्चों में देखोगे तो। ओके, और आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप खाओ तो बिल्कुल थोड़ा बहुत चलो। खाने के बाद चलना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम मानते हैं हेल्दी हैबिट के अंदर। ओके, क्योंकि हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, हमने हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसे डाइजेस्ट होने के लिए आप मदद कर ही दो। वैसे तो है आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, लेकिन अगर आपने वॉकिंग कर लिया तो फिर और वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आइसिंग ऑन द केक, और अच्छे से आपको बॉडी को रिस्पॉन्ड करेगा। वॉकिंग करने से फ़ायदे क्या हैं आपको? आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे जो कुछ आपने खाना खाया तो बॉडी में आपके शुगर दौड़ने लगा, जिससे कि हर सेल में जाना है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। जब आप मतलब वो शुगर को भी यूज़ कर रहे हो, आप उसी वक्त ख़त्म कर रहे हो, है ना। हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए मदद करता है। ये आपका हार्ट बर्न और इंडाइजेशन रिड्यूस करता है, हार्ट बर्न एसिडिटी जिसको बोलते हैं, है ना। और आपका मूड और एनर्जी को अच्छा करता है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आपकी एनर्जी अगर अच्छी रहेगी, और ब्रेन हमारा 20% एनर्जी यूज़ करता है टोटल कैलोरी जो हम यूज़ करते हैं बॉडी दिन भर में, उसका 20%। तो क्योंकि आपके एनर्जी बॉडी ब्रेन को मिल रही है, तो यू आर इन हैप्पी मूड एंड एनर्जी मूड। अब हम फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट में आते हैं कि शरीर के अंदर क्या क्या होता है। ये आपको शायद पता चले भी और नहीं भी पता चले। आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारा शरीर हमारे नेचर के साथ अलाइंड है, मिला हुआ है ना। कि जिस तरह से नेचर चलता है उस तरह, इसलिए हम जैसे रात होती है हम सो जाते हैं। सभी नहीं सोते हैं, बट नॉर्मली सबको सोना होता है रात के टाइम पे, और डे के टाइम पे काम करता है। तो उसी की तरह हमारे शरीर के अंदर उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमको सोने में मदद करते हैं, उठने में मदद करते हैं, भूख लगने में मदद करते हैं, हमारा जो शुगर होता है उसको अच्छी तरह से यूज़ करने में मदद करते हैं। तो इसलिए हमें उस साइकिल को अगर आप समझो तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको इधर दिखेगा, आपको कॉर्टिसोल एक सॉरी घिरलिन एक ऐसा चीज़ है जो आपके भूख के बढ़ाता है। तो आप वो देखोगे, आप डे टाइम पे है, वो राइट वाला साइड अंधेरा है, डार्क ब्लू रात का टाइम, और जो लेफ्ट साइड का है लाइट ग्रे लाइट ब्लू, वो है दिन का टाइम। सुबह के टाइम पे आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है। तो ऑब्वियसली है, क्योंकि आप ज़्यादा खाना खाओगे
इंसुलिन ज़्यादा है तो फटाफट फटाफट आपका शुगर को मेटाबोलाइज कर देगा। अगर आपने सर्काडियन रिदम के साथ आप नहीं चले, सर्काडियन रिदम मतलब जो आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके साथ आप नहीं चलोगे तो क्या होगा। ये देखा गया है कि कई लोगों को फैटी लिवर की बीमारी आ रही है। आज की डेट में आप देखो, ना दारू पीते हैं, ना नॉनवेज खाते हैं, ना दूध पीते हैं, फिर भी उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को आपको डायबिटीज़ दिखेगा, इन लोगों के शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, इन लोगों का वजन बढ़ेगा, और ऑब्वियसली है कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो अल्टीमेटली आना ही आना है हर चीज़ से। ओके, क्योंकि उनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ चुका है। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट बराबर नहीं किया तो देखो आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को किस तरह से आपको फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपने नॉन न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट किया, मतलब न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो आपको एसिडिटी हो रही है ना, क्योंकि सुबह सुबह एसिड तो बन ही रहा है ना खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और आप नहीं खिला रहे हो, बॉडी को दे रहे हो, तो एसिड बन रहा है। जब एसिड रिफ्लेक्स की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर की वजह से आपके अबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हार्ट के वजह से मतलब न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट न करने की वजह से 1.9 टाइम्स डेथ का रिस्क बढ़ जाता है, और हार्ट की बीमारी से होने वाली मौत का जो रिस्क है वो 1.87 गुना बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर के स्ट्रोक से जो मौत का रिस्क है वो 3.39 टाइम्स बढ़ जाता है। इमेजिन करिए, 300 गुना। ओके, सो जब आप न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे कि हमने पढ़ा, आपका वेट गेन होगा, क्योंकि आपने सुबह का नाश्ता बराबर नहीं किया, आपने दिन भर के साइकिल को बिगाड़ दिया, आपने सब उल्टा सुल्टा खाना चालू रखा, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा। ओके, और अंदर इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी एक होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। जो भी बीमारी के पीछे टेस्ट लगता है वो समझ जाइए आपको इन्फ्लेमेशन के साथ है। ओके, आपने न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और फैटी लिवर बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो अंदर हो रही हैं आपको पता नहीं चलेगा। आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन वगैरह में बराबर तकलीफ आएगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि आपको जब पचाना है तब जब आप बॉडी पचाने के लिए तैयार है आप खा नहीं रहे हो, जब पचाने के लिए तैयार नहीं आप ज़बरदस्ती ठेले जा रहे हो अंदर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, मतलब जो शरीर के अंदर जो अभी हमने देखे नुकसान। तो अगर आपने न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट सही तरीके से किया तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो बेनिफिट ये है कि आपका शुगर बैलेंस में रहेगा, डायबिटीज़ है ना कंट्रोल में रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहेगा, और आपका मसल मास का जो मेंटेनेंस है वो एकदम बैलेंस में रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि फैट बढ़ जाए, फैट और जो मसल का जो एक रेशियो है वो रेशियो बराबर रहेगा। और एक चीज़ कि क्या हमें हाई कैलोरी मील रात को खानी चाहिए या सुबह खानी चाहिए। ऑब्वियसली सुबह खानी चाहिए। क्यों? सुबह सुबह हम ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, तो इससे ज़्यादा कैलोरी खा लेंगे तो स्पेंड भी हो जाएगा, ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। ओके, इसकी वजह से जो हम सुबह सुबह हाई कैलोरी मील में अगर फैट खा लें सपोज, तो वो भी मेटाबोलाइज हो जाता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा है। ओके, और अगर हमने रात को खाना खाया तो क्या होगा, इसका विपरीत, क्योंकि रात को हमारी एनर्जी की यूज़ कम होनी है, फैट बन के कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिडिटी होगी, मसल रिकवरी एंड रिपेयर बराबर से नहीं होगा, क्योंकि आपने खाना इतना डाल दिया अंदर कि जो शरीर को काम करना है वो अपने काम की एनर्जी को दो जगह डिवाइड कर रहा है ना। अब सर्काडियन रिदम और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या हैं इसके, देख लीजिए आप। सिंपल है कि अगर आपकी डाइट क्वालिटी अच्छी है
मील टाइमिंग अच्छी है और मील फ्रीक्वेंसी अगर सही है तो आपका गट माइक्रोबायोटा ठीक रहेगा। गट माइक्रोबायोटा बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी एक बार बताया कि हमारे शरीर में कई बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे। इसका रेशियो नॉर्मली 15 और 85 होना चाहिए। 15 मतलब बुरे वाले, 15 से कम, और 85 से ज़्यादा अच्छे वाले। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आपने टाइम पे कर लिया और अच्छा से कर लिया और हेल्दी कर लिया तो आपका जो ये रेशियो है ये बिगड़ने नहीं देता। ओके, और क्योंकि अगर बिगड़ेगा तो इससे कई सारे और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जब आप गट वाले प्रोग्राम पे अगर अटेंड करोगे, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते हो चुका है, तो आपको उससे मालूम पड़ जाता है कि क्या है इसमें क्या नहीं है। अब फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा इसके वजह से अपने को, सॉरी साइकोलॉजिकल, यस साइकोलॉजिकल इफेक्ट अपने लिए क्या होगा। आप देखिए, अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया तो आपको एनर्जी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अच्छे से नहीं किया तो आपको एनर्जी की सप्लाई कम। जब आपको एनर्जी की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली है ब्रेन को भी एनर्जी की सप्लाई कम होगी, जिससे ब्लड कम पहुंचेगा उधर, क्योंकि ब्लड ही तो ले जाएगा ना एनर्जी। और जब ब्लड ही वहाँ बराबर से एनर्जी नहीं ले जाएगा तो ऑब्वियसली है कि आपका दिमाग का जो अलर्टनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको सोचने, समझने, काम करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव रहेगी क्योंकि दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, कॉग्निशन आपका अच्छा रहेगा, आप सोचोगे बहुत अच्छे से, मेंटल क्लैरिटी रहेगी आपकी, जो भी आप काम कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो, आपको पता है क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, इसलिए कि उसको एनर्जी की सप्लाई बराबर से है। इसलिए आपका स्ट्रेस इसकी वजह से कम रहेगा क्योंकि आप गलती नहीं कर रहे हो, आपका मूड एकदम अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे, है ना। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट विद हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर ऐसा देखा गया है कि 45 अलग अलग स्टडीज़ किए गए हैं ब्रेकफास्ट के ऊपर, जिसमें ये देखा गया कि अगर आपने रेगुलर ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है, अच्छे से इन द सेंस जितना खाना है, जो खाना है, जैसे खाना है, तो आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी ये बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपके सोचने की शक्ति अच्छी होती है। और ये जो रिसर्च है ये बच्चों के ऊपर भी किया गया, तो हम सिर्फ एडल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए भी हम बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट हर इंसान के लिए, है ना। तो जब सुबह अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और कई बच्चों को सुबह भूख नहीं लगती है तो ये भी गड़बड़ है, लगना चाहिए, और नहीं लगती है तो इसका मतलब आपने एक दिन पहले सही से काम नहीं किया है, खाने पीने का काम जो भी है ना, मतलब टाइम पे नहीं खाया है, न्यूट्रिशियस नहीं खाया है, गलत टाइम पे गलत चीज़ खा ली है, उसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट डे दिखता है। तो अगर आपको सुबह बच्चा है तो उसको शुरुआत कहीं से भी कर लो, भले एक फ्रूट से कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ उसको दे के जाओ खाने में, खिला के जाओ, खिला के भेजो उसको, है ना। एक समरी है कि अगर आपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन अगर अच्छे से किया है तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या है। फिजिकल नीड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपका वेट अच्छा रहेगा, मसल मास आपका अच्छा रहेगा। साइकोलॉजिकल में अगर आप देखोगे तो आपकी मेंटल वेलबींग अच्छी रहेगी, कॉग्निशन आपका इम्प्रूव होगा, कॉग्निशन मेमोरी आपकी इम्प्रूव होगी। और अगर फिजियोलॉजिकल में अगर आप देखोगे तो आपका मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा रहेगा, गट हेल्थ अच्छा रहेगा, और आप एनर्जी को अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे, और सैटिस्फैक्शन को आप कंट्रोल कर पाओगे। तो सैटिस्फैक्शन मतलब ये है कि जो भी आपने खाना खाया है उसके बाद भूख कब लगती है। अगर आपने ध्यान रखिएगा, अगर आपने अच्छा सा खाना सुबह नहीं खाया तो आपको भूखने लगना ही लगना है 10-11 बजे के आसपास, या फिर अगर आपने 1-1:30 बजे के आसपास अच्छे से खाना नहीं खाया न्यूट्रिशियस तो आपको 4-5 बजे फिर भूख लगेगी। ओके, तो इसीलिए आपको सोच समझ के खाना है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मॉर्निंग न्यूट्रिशन की, तो अगर मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ऊपर मैं आपको बताऊं तो आपको सुबह सुबह क्या चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन कितना खाना है आपने, प्रोटीन खाना है आपने दिन भर के रिक्वायरमेंट का अप्रॉक्सीमेटली 50%। अगर आपका वजन समझो 70 किलो है, 35 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, तो सुबह सुबह आपने 35 ग्राम प्रोटीन खा लेना। ओके, अगर आपका मन में यह है कि दिन भर में आपने कुछ फैट वाली चीज़ खानी है तो व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर आप लिमिट में खा रहे हो तो फैट वाली चीज़ को आप सुबह सुबह खाओ, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ऊंचा है, तो आप सुबह सुबह खा सकते हैं। आपके बॉडी ने सुबह सुबह आपके न्यूट्रिएंट्स आपके डिप्लीट हो चुके हैं क्योंकि रात को रिपेयर हुआ है, तो आप सुबह सुबह आप फ्रूट खा सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में दीजिएगा। आपको
एक चीज़ ध्यान में देना है कि जैसे कि 2 अनाज एक टाइम पे ना खाएं। जैसे कि अगर आपने सुबह पराठे खा लिए तो पोहा साथ में ना खा लो, डोसा खा लिया तो पराठे साथ में मत खा लो, है ना। 2 अनाज नहीं खाना साथ में। दोपहर को भी सिर्फ एक ही अनाज खाओ, रात को भी सिर्फ एक ही अनाज खाओ अगर खा रहे हो तो। ओके, तो ये सारे बेनिफिट हैं आपके पास। और जो कि हम बोलते हैं कि आपने क्या करना चाहिए हमेशा हेल्दी रहने के लिए, तो वो है शाइन। तो शाइन का मतलब वो है कि आपको हर सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करनी है। ओके, आपको अपना न्यूट्रिशियस खाना खाना है। ओके, आपके इंटेंशन क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या पाना है अपने लाइफ से, हेल्थ के मामले में, फाइनेंस के मामले में, मेंटल वेलबींग के मामले में आपको क्या चाहिए, वो आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आप उसकी उस तरफ आप काम करो। उन चीज़ों को पाने के लिए अगर आपको कुछ न्यू चीज़ सीखनी है तो डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखो आप। ओके, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मैं अभी इसमें एक बात बोल दूँ मैं आपको, हमारे ही बिल्डिंग में अभी कुछ 15 दिन पहले एक सज्जन एक्सपायर हुए हैं। उनकी एज थी 82 ईयर्स, और जिस दिन वो एक्सपायर हुए उनकी बॉडी पड़ी है हॉल में, और सडनली एक फ़ोन आता है और कोई रिलेटिव उठाता है फिर फ़ोन उनका, और सामने से सवाल यह आता है कि आपने जिस कोर्स के लिए अपने आप को इनरोल किया था वो 11 बजे स्टार्ट होगा, आप टाइम पे लॉग इन कर लीजिएगा। इमेजिन करिए 82 के एज में वो इंसान कोई नए कोर्स को सीख रहा था। ही इज़ रिटायर्ड, कुछ नहीं करते, लेकिन पता नहीं कौन से कोर्स पे वो कर रहे थे, कोर्स पे इन्वॉल्व किया था उन्होंने अपने आप को, और उसके लिए कॉल आया था। एंड देन फिर दिस गाय सेड कि सॉरी ही हैज एक्सपायर्ड टुडे मॉर्निंग। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। ओके, और सबसे आखिरी में अगर आप सोचोगे कि सब कुछ हम कर लेंगे लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सॉरी, आपको आपका शरीर ही आपका साथ देने वाला, याद रखिएगा, आखिरी सांस तक। ओके, और अगर आपने उसको उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया तो फिर आप गलत रास्ते जा रहे हैं। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए उसको कंटिन्यूस मोशन में रखना ज़रूरी है। एक्सरसाइज डेली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो लास्ट में क्लोज करते करते मैं सिर्फ एक वापस में बोलूँगा, खाने के बारे में हम जो बात करते हैं, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। तो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ तो जब मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशियस खाना है। ध्यान रखिएगा कि हम जो सबसे कम चीज़ खाते हैं वो है प्रोटीन, सबसे कम चीज़ खाते हैं वो है विटामिन और मिनरल्स, सबसे कम चीज़ जो खाते हैं वो है फाइबर न्यूट्रिशन के अंदर। इन 3 चीज़ों का आपको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, याद रखिए। बाकी 2 चीज़ को आप एक बार इग्नोर भी कर दोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी ज़्यादा खा चुके हो। ओके, तो ये 3 चीज़ें अगर आपने सुबह सुबह खा ली, प्रोटीन आपने अच्छी तरह से खा लिया, आपने फाइबर अच्छी तरह से खा लिया, और न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने अच्छे से खा लिया, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। कहाँ से मिलेगा आपको? प्रोटीन के सोर्सेज आप आते रहिए, आपको पता चल जाएगा। विटामिन जो मिनरल्स जो है वो आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं, और फाइबर आपको फ्रूट्स में मिल जाते हैं। और साथ में अगर आपको चाहिए तो सप्लीमेंट, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपके पास उतना फाइबर आप नहीं खा पा रहे हो जितना आपको चाहिए, तो आप सप्लीमेंट उसका यूज़ कर सकते हो। तो क्या खाना है हो गया। कब खाना है? सुबह उठने से 2 घंटे के अंदर। हम अज़्यूम करते हैं कि आप 7 बजे के आस-पास उठ जाते हो, तो 9 बजे के अंदर-अंदर आपने नाश्ता कर लेना चाहिए। उससे पहले आप 7:30 बजे भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू। ओके, कितना खाना है ये हमने आपको क्वांटिटी बता दी है रफली। ओके, और कैसे खाना है? फ्रूट्स जहाँ तक हो सके एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाइएगा। मैं अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं कम से कम 400 ग्राम फ्रूट खा लेता हूँ, क्योंकि मैं फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाता सुबह। ओके, इट ऑल डिपेंड्स, आपको जिसने यहाँ बुलाया है, जो भी आपके मेंटोर हैं, उनसे आप पता लगा सकते हो कि आपका प्लेट कैसा होना चाहिए। ओके, फ्रूट पहले खा लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप प्रोटीन के ऊपर जा सकते हो और फाइबर के ऊपर जा सकते हो। ओके, क्या खाना है बता दिया, कितना खाना है बता दिया, कैसे खाना है बता दिया, और कब खाना है बता दिया। सो आई थिंक आई हैव मेड माय मॉर्निंग न्यूट्रिशन टॉपिक वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रुचिता। Absolutely, Manoj. Thank you so much. इतने डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, एंड आई थिंक वी हैव सीन
a lot of people respond to the polls also earlier today. So I hope कि हमें सबको vision मिला है कि जिस तरीके से हम usually we go about our mornings and how it should be modified, step by step to make it more ideal. With that, we come to an end of this session. Thank you, everyone. You've been a great audience. See you in the next session. Good night.